I think Neetu Singh has some concern regarding the installation of the software. So Yes. I will be sorting out his issue in late night today or by possibly by tomorrow. So Okay. if anyone else is finding the same difficulty, so do let me know, because since we have already started our lectures with the simulation environment, and it's very much important that you start to practice. Until and unless you start to practice, you will not be able to hold these things, okay, and how these things are performed. So what I will do is, let me start the recording of this particular session so that we can begin. Okay, someone has already started the recording. Okay, fine, no issue. Yeah. So, talking about today's lecture, what we will cover today. So, we will go through the simulation of heat exchanger first of all, then a brief designing details of heat exchanger I will like to tell you all. Then we will go through the simulation of our stoic model, which is a basic reactor, which doesn't obey the like things like the which type of reactors you are basically using, the type of packing is required or not. So type of a structure does it, what type of structure does it have, it doesn't relies on those things. So basically, while going into the details of column separator, I already told you that column separator model is just a rating based model which will give you the desired separation. Okay, so in the similar way, if we talk about reaction, so for reaction we do have our conventional models with us, like CSTR, PFR, and there are many other models. But the basic elementary model that the Aspen has itself is R strike model. So basically, we will be discussing the simulation of that particular model, then moving on to the design of a CSTR in Aspen, and we will talk about the simulation of different reactor configurations in today's lecture. So, as you all are aware of this particular thing, that currently we are working in simulation environment, and this is how the GUI of simulation environment looks like. And we are working in this particular environment for now. And talking about the simulation of shell and tube heat exchanger, we will be considering this particular example, and using this particular example, we will see that how we can simulate a heat exchanger. Okay, so for now, I will be telling you this thing by performing this particular simulation so that it would be very easy for you to understand. And I have already added the stepwise procedure of doing this thing in the PPT so that you can follow up that PPT and you can again reperform it. Okay. So first of all, we will go for the new thing, new template, and we will create blank template, blank simulation. Once we get into the new template thing, and the Aspen will directly take us to the property in environment, which will ask us to add our component. So the component that we are focusing on is, I guess it is difluoromethane. So it would be difluoromethane. So I guess it would be CCl2 and F2. Yes, it is difluoromethane. And then we have ethylene glycol. So by pressing EG, we will be able to add ethylene glycol, and these two are the desired component that we need to add for performing our particular operation. So we will be pressing next, and we will be selecting one base method. So I haven't gave you any lecture on the selection of this particular base method. So although I would like to show you that how you can exactly use Aspen to tell you that what sort of method you should select for your desired component. Okay. Although it's a very intensive job to search out for, to look for a very, I guess my screen is visible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. If anybody finds any difficulty in understanding whatever I'm describing, or anybody finding is any difficulty regarding the viewing of a screen, do let me know. Okay. So Okay. what I have done, I have pressed this methods assistance, and this will enable you to ask Aspen that how you can select a specific method for your specific component. So we can select the method on the base of two things.
that whether we specify the component type or whether we specify the process type. So for now, we haven't gone into this particular thing that we are specifying process type, but we have gone through this particular thing whether we need to specify our components in the very first step. So for now, we will be focusing on this thing that if we specify our component, then what sort of method we should select for our specific component. So choosing on the specific component, what Aspen is asking us, Aspen is asking us about select the type of component system, whether it is a chemical system, whether it is a hydrocarbon system, whether it is special, that is water only, amine, sour water, carboxylic acid, HF, electrolyte, or whether it is refrigerant. So for now, I'm going for hydrocarbon system. So does the mixture contain petroleum, assay, or zero component? No, for now it's not containing. सर Yeah. सर मतलब जैसे ये हाइड्रोकार्बन आपने सेलेक्ट किया है तो अगर मतलब हम केमिकल में लें तो केमिकल में भी तो ये सब इंक्लूड हो जाएगा ना केमिकल वाले सिस्टम में नहीं होता तो है, बट स्पेसिफिकली जब आप हाइड्रोकार्बन के साथ डील करते हो ना, तो उसके साथ कुछ कुछ मॉडल्स अलग हो जाते हैं, तो आपको फिर स्पेसिफिकली चूज करना पड़ता है। तो वो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे मैटलैब, यहाँ पे जैसे एस्पेन ने आपको सजेस्ट किया है कि यू शुड गो फॉर दीज 5 मेथड्स। ओके, these 5 methods you should go for if you are going for hydrocarbon system. Let's look into chemical system, whether what Aspen is telling us. So for the time being, if I selected the chemical system, then the Aspen is asking me whether the pressure is higher than 10 bars or it is less than 10 bars. So for the system which I am currently working, it should be less than 10 bar. So I will say no, the pressure is less than that. And then again it will ask me the following issues must be considered. Okay, so these using these particular fundamentals, you would be able to select your method, basic method, base method. Although it's this particular job is a very robust job, whether you must have idea about you need to have idea about all the base methods which is present in the Aspen directory to help yourself out of this situation. So I will not go into detail, but in the later lectures, I will be presenting you a flow diagram which will assist you in understanding the basic structure of choosing yeah, that is base method. So you will be getting help from that particular flow diagram, which I will be showing you in the later lectures, so that you doesn't find any difficulty in choosing this particular base method. So for the time being, I'm going for Unifac, and I'm selecting Unifac as my base method, and I'm moving ahead. So I will press next, and the Aspen will ask me that properties inputs are complete. So what I would like to do next. So I would like to go to the simulation environment for the time being, and I will press OK. Now what Aspen will do, it will take me to the simulation environment for this purpose. And in simulation environment, we are aware of this particular model palette where different models are present, and whatever model we need to work on, we can select that particular model from there, and we can take it to the flow sheeting area, and we can perform our desired simulation. So for the time being, we are interested in exchangers. Okay, so and specifically in exchangers, we are interested in cell and tube type heat exchanger. So what I will do is this particular heat exchanger will resemble the shell and tube heat exchanger. So keep this particular thing in mind. And we do have different type of heat exchanger. So I will get into this thing in detail in later, few minutes later. So what I will do, I will press on this and I will take this to my flow sheeting area, and I will enlarge this a bit, and then I will be adding my material streams. So once I click on this, these 4 red arrows will appear automatically, asking me to add 4 streams. So obviously, if we are dealing with any sort of heat exchanger, whether it is a double pipe heat exchanger, whether it is a tube shell and tube heat exchanger, so what it will have 2 inputs and 2 outputs. So one pair is for your cold stream and one pair is for your hot stream. So by default, what Aspen has, this particular input and this particular output is for your cold stream. So because we know cold where does the cold stream flow in shell and tube heat exchanger? shell side So this particular arrow is resembling your cell side, and this particular arrow is resembling your tube side. So by default, Aspen will tell you that this is your hot required, and this is your hot required, and this is your cold required, and this is your cold
required up to 3. So that means this is your cold सर input. बट ऐसे ये जो कोल्ड वाला स्ट्रीम है, तो अगर हम ऐसे लेते हैं तो जनरली ये ट्यूब की साइड होता है ना, ट्यूब की साइड फ्लो हो रहा होता है फ्लूइड। कोल्ड स्ट्रीम, हाँ मतलब जहाँ पे कोल्ड स्ट्रीम का एरो है ना, तो अगर हम उस डायरेक्शन में लेते हैं तो मतलब तब वो ट्यूब की साइड फ्लूइड फ्लो होता है ना, और जो हम वो तो अलग परपेंडिकुलर बात है। लेते हैं। हाँ वो तो अलग है, वो तो अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट बाय कन्वेंशन यहाँ पे आपका जो रिजेम्बलेंस हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका शेल दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे हाँ आपका शेल दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एस्पेन ने आपको बताया कि यहाँ पे आपका कोल्ड इनपुट, कोल्ड स्ट्रीम इन होगा और यहाँ पे आपका कोल्ड स्ट्रीम आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो ट्यूब्स बनाए हुए हैं, तो ट्यूब्स हाँ को हाँ। दिखाने के लिए उन्होंने वहां पे क्या किया, यहाँ पे आप हॉट स्ट्रीम इन करो, यहाँ पे आप हॉट स्ट्रीम आउट करो, ठीक है। एंड वॉट एवर यू आर टेलिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच in this direction we do have the input of hot stream, because in this direction our tubes lie, correct? ओके सर। ठीक है। So this is your hot output and this is your hot stream, sorry, hot stream input. So now currently we have 4 streams with us. One is your cold stream inlet, 2 is your cold stream outlet, 4 is your hot stream inlet, and 3 is your hot stream outlet. So for the time being, we must change this thing so that we didn't get confused with the stream number. So what I will do is I will just give them some name like cold in, cold out, hot in, and hot out, and hot out. सर ये नंबर्स तो अपने आप रैंडम आ जाएंगे ना, मतलब खुद से ही? खुद से ही आएंगी, बट वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्ट्रीम को कब ड्रॉ करते हो, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने पहले हॉट आउट को ड्रॉ कर दिया तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिस जिस ऑर्डर में आप स्ट्रीम्स को ड्रॉ करोगे, नंबरिंग उसी ऑर्डर में आएगा। तो इट्स बेटर कि आप उस पर कंफ्यूज ना करके आप स्ट्रीम्स को रीनेम कर दो, सो दैट कि आप जब नेक्स्ट प्रेस करो तो एस्पेन जब आपको डिटेल्स मांगेगा तो वो आपको डायरेक्टली स्ट्रीम्स के नाम से डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। सो इट यू सर विल बी अभी नॉट। अपने हॉट इन वाला सबसे मतलब कि एंड में किया ना, बट उसमें हाँ तो 3 आया, और हॉट नहीं, आउट वाला इसमें आपने। 4 आया है, इसमें 4 आया है। In this अच्छा। particular case 4 was appearing. चलो ठीक है, I will show you again. Okay, delete, 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 delete. So we were there. I will press the material stream input. See, this stream will be coming as your 5 because I have already added my 4 streams. Just follow up the order. Okay, 5. Then I've added this particular stream. It will be coming as 6. Then I am adding this particular stream. It will be coming as 7. And then I will be adding this particular stream, which will be coming as 8. Fine with it? यस सर। So in whatever add order you add the streams, the numbers will appear in those in that particular order. Since I have already added 4 streams in the earlier, I have deleted those. That's why the order number is 5, 6, 7, and 8. So what I will do, I will again rename them so that we doesn't find any difficulty. Cold in, this is our cold out, this is our hot in, and this is our hot out. Hot out. So we are done with our what we can say PFD, a very small PFD of heat exchanger. So once we're done with this, we will press next, and Aspen will ask us about the cold stream inlet and hot stream inlet. Again, let me tell you that we are working with a rating based model in which the details of input stream is only required, and as the rate design has been done for this particular model, it will be giving you the output streams calculation. So there is no specific requirement, there is no specific data which is required for your output stream. That is, you can see there is no red symbol over there, there is no red symbol over there. It is your hot output, it is your cold output, but in case of your cold in, there is a red dot. In case of your hot in, there is a red dot. That means we need to provide the data regarding this input stream. Okay, so let's go back to the question and let's see what sort of data that we have with us. So right now we need the data of your cold stream inlet. So cold stream inlet is your dichlorofluoromethane, which is
entering at a rate of 10,560 kg per hour, and it needs to be heated from 240 Kelvin to 300 Kelvin at 7 atm pressure. So the cold stream temperature is 240 Kelvin, 240 Kelvin, and the pressure that we have is 7 atm, 7 atm, and we don't have mole flow. What we does have? We does have mass flow, and the mass flow for that particular dichlorofluoromethane is 10,560. So in the last lecture, I told you that the degree of freedom for any stream is C plus 2. So our cold stream is constituting of only one component, that is your difluoromethane. That means the number of component is 1, and plus 2, that is your 3. That means the degree of freedom for specifying this particular stream is 3. So we need to provide the data for 3 different variables. मतलब फेज वाला भी तो टर्म होता है C+2 - P। नहीं, वो होता है, वो आपका अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसीलिए मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रीम्स के लिए अलग से स्पेसिफाई किया था, दैट इज जो C+2. ठीक है, इन एस्पेन whenever we draw a stream and whenever we define that particular stream, so the degree of freedom rule that particular stream would follow is C+2. ठीक है, ये याद रखना. So in क्योंकि case of heat exchanger, no, in every case, okay. ठीक है, जब भी हम किसी भी स्ट्रीम को एस्पेन में डिफाइन करेंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम C+2 से ही डिफाइन होगा. ठीक है, डोंट मेक कंफ्यूजन विद दैट पर्टिकुलर DOF दैट वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स, वेयर देयर इज फेज इनकॉर्पोरेशन, देयर इज कंपोनेंट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, उससे आप कंफ्यूज मत हो. आप बस ये दिमाग में रखो कि आपका जो स्ट्रीम है, अगर मैं किसी भी स्ट्रीम को एस्पेन में ऐड करता हूं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम C+2 है. दैट इज दैट्स इट, वेयर C इज योर नंबर ऑफ रीजन है, मतलब कि क्यों ऐसा क्यों है? फंडामेंटली जो डिजाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है. क्योंकि देखो, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कोड को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, बैकएंड पे इसका भी कोडिंग किया हुआ है, इसका भी लॉजिक्स डिफाइन किए हुए हैं. ठीक है, तो इन दीज लॉजिक्स दीज थिंग्स हैव बीन डिफाइंड. तो आपको यही चीज फॉलो करना पड़ेगा सो दैट यू कैन डू डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स. और एग्जैक्ट रीजंस तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, बट द वे इट हैज बीन डिजाइन, इट फॉलो द थिंग कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो C+2 होगा. ठीक है, एंड वी हैव टू फॉलो इट. इज इट ओके? ओके, सो यहाँ पे आपका अगर एक स्ट्रीम की मैं बात करूं तो एक स्ट्रीम में मेरे एक ही कंपोनेंट है, दैट इज योर डाइफ्लोरोमीथेन. दैट मींस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. सो हमने तीन चीजें स्पेसिफाई कर दी. वी स्पेसिफाई द मास फ्लो रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, वी स्पेसिफाई द टेम्परेचर, एंड वी स्पेसिफाई द प्रेशर. ओके, सो आई विल से नेक्स्ट, and Asper will ask me about hot fluid inlet. So let us see at what condition we do have our hot stream. So we do have our hot stream as 350 Kelvin and 2 atm pressure, and we doesn't have any details regarding the flow rate. Okay, so the temperature is your 350 Kelvin and the pressure is 2 atm. The pressure is 2 atm, but as we provide these two data, we can see that this particular tab doesn't turn blue. That means we need to specify one more data, and unfortunately we don't have one, because we are not provided with the flow rate of your hot stream. Hot stream, what sort of flow does it have, if there is any composition or not, we don't have all those things. It's only mentioned that the ethylene glycol solution, whatever is entering, it is 58%. The data is insufficient because whatever stream we have considered, it is a pure ethylene glycol stream, so the weight percent would not work out over here. So what I will do is, in these cases, in general, what we have to do, since we are working with rate-based model, so we need to specify, or we need to assume whether, if you are dealing with any problem, let us say we are dealing with you are dealing with the same kind of problem, and you don't have any particular data. So in that case, what you have to do is you have to assume one data. Okay, so since we have assumed that since we have the data of this particular cold in as the flow rate of difluoromethane as 10,560, so I am considering the rate of the mass flow rate for this particular thing nearby same, and I'm considering this thing as 10,000. Although I am not aware of it, whether it is correct or not, later on the simulation will tell me whether this assumption is correct or not. But for the time being, I was in absence of this particular data, so I have assumed it, and I will perform the
simulation based on this particular assumption, and I will look into my result, and I will be analyzing my result. Based on that result, I will be drawing some conclusion, and whether I need to change this particular flow rate, and whether I have to increase this particular flow rate, or I have to decrease this particular flow rate to achieve the desired temperature profile. It will all will be discussed after we achieve the after we complete the simulation and we get the result. So for the time being, what I will do is I will assume the mass flow rate for this particular ethylene glycol stream is to be 10,000, so that we can match up the stream flow rate of dichloromethane, which is your cold stream, which is nearby 10,560. So what I will do, I will press next. सर बताइए. इसको MCP डेल्टा T से फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब कि क्योंकि कोल्ड का मतलब कि दोनों इनलेट आउटलेट टेम्परेचर दिया है और हॉट, और तो इससे भी तो हम फाइंड आउट करके यहाँ रख सकते हैं ना. हेलो सर. Hello. हेलो सर. Yeah, am I audible? There was some network issue, I guess. Yeah. यस सर. Yeah, I was saying that कि आप कर सकते हो MCP निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास वो डेटा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका डेल्टा टी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका डेल्टा टी प्रेजेंट है, आप MCP डेल्टा टी लगा के निकाल सकते हो. बट डू यू रियली थिंक दैट that particular flow rate, whatever you will get, it is practically correct? मतलब हो सकता है, मतलब क्यों नहीं होगा प्रैक्टिकली करेक्ट. Okay, so on what basis you are saying that it has to be practically correct? सर मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मतलब इतना नहीं होगा बट थोड़ा बहुत. चलो ठीक है. अगर वेरिएशन हुआ तो किस कारण से वेरिएशन होगा? सर मतलब थोड़ा नहीं, you are कोई going in the भी right रीजन हो direction. सकता Tell है me. मतलब सर. अरे कोई भी कैसे रीजन होगा यार? we are dealing with science. So कोई भी रीजन नहीं हो सकता है. एक स्पेसिफिक रीजन होगा, या दो स्पेसिफिक रीजन होगा, या मल्टीपल स्पेसिफिक रीजन होंगे, बट हाँ लॉजिकल रीजंस होंगे. सो अगर आप कहते हो कि फॉलिंग हो सकता है, मतलब हीट MCP एक्सचेंज. डेल्टा टी में फॉलोइंग टर्म कहाँ पर आ गया? नहीं मतलब सर आप बोल रहे हैं ना प्रैक्टिकल केस से वेरी करेगा नहीं करेगा, तो मतलब हो सकता है ना कि अगर मतलब प्रैक्टिकली अगर मतलब हीट एक्सचेंजर में फॉलिंग वगैरह हो अगर तो आपका इसकी नया वजह हीट एक्सचेंजर है तो फॉलोइंग की बात नहीं होती है. What you will say in that case, if my heat exchanger is working, I am using it for the first time. सब मतलब बट हो सकता है ना कुछ और भी रीजन हो, जैसे The टर्बुलेंस, reason is your CP, not no turbulence. The reason is your CP, that is your specific heat. Specific heat is a temperature dependent function. यस. ठीक है? And within heat exchanger, the temperature of one stream is changing from 240 to 300. Okay, and the another stream is changing from 350 to 320. So do you have any idea regarding the specific heat changes? What sort of whether the heat capacity will change linearly or quadratically, or what sort of behavior it does have? It may be linear, it may be non-linear. So we doesn't have any idea regarding that, correct? यस सर. तो आप अगर MCP डेल्टा टी भी अप्लाई करते हो तो आप एक एवरेज वैल्यू, मतलब एक नियर बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालते हो, सो दैट कि मेरा कितना फ्लो रेट हो, सो दैट कि आई कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. और MCP डेल्टा टी जो है ये एक आइडियल केस है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप CP को एज अ कांस्टेंट रख लेते हो, किसी भी मतलब एक कंपोनेंट पर्टिकुलर के आप CP टेम्परेचर को. पे रख देते हाँ, हैं ना. बट हीट एक्सचेंजर के अंदर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि या तो वो स्ट्रीम ठंडा हो रहा होगा या तो वो स्ट्रीम गर्म हो रहा होगा. तो या तो अगर वो गर्म हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, और जो स्ट्रीम ठंडा हो रहा होगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा. तो हमें ये देखना जरूरी
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वैरी करता है। और अगेन इफ यू विल गो फॉर दैट, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम वेरी टीडियस। ठीक है, सो इसीलिए मैंने बोला कि वी विल बी अप्रोक्सीमेटिंग वन वैल्यू जो कि हमारा दोनों फ्लो रेट कंसिडरेबल रेंज में हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, द सोल थिंग इज दैट वॉट एवर वर्क दैट विल बी डन, इट विल बी डन बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी काम करना होगा वो मेरा सॉफ्टवेयर करेगा। व्हाट आई विल डू, बीइंग द प्रोसेस इंजीनियर, आई विल गिव द कंडीशंस कि भाई मैं तुम्हें कंडीशन दे रहा हूं, आप इस कंडीशन को मानते हुए ये सिमुलेशन परफॉर्म करो। ठीक है, उसके बाद सिमुलेशन करने के बाद सॉफ्टवेयर जो मुझे रिजल्ट देगा मैं उसे एनालाइज करूंगा। ठीक है, मैं उसे एनालाइज करूंगा, मैं देखूंगा कि एनालाइज करने के बाद कि मेरे जो एजम्पशंस थे, मेरी जो वैल्यूज प्रोवाइड मैंने की है, क्या वो वैल्यूज मेरे डिजायर्ड टेम्परेचर प्रोफाइल को रीच कर रहा है। अगर रीच कर रहा है तो ठीक है, अगर रीच नहीं कर रहा है तो वेयर आई शुड ब्रॉड द चेंजेस, मैं कहां पे अपने चेंजेस लाऊं सो दैट आई कैन अचीव द डिजायर्ड टेम्परेचर प्रोफाइल। डिड यू गेट मी? यस सर। सर और मतलब ऐसे हम लोग पता भी नहीं लगा सकते ना कि मतलब सीपी कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, मतलब सब पता लगा सकते हो, बट इट ऑल कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे पता लगता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप पता नहीं लगा सकते हो, हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर में सब कुछ अवेलेबल है, स्पेसिफिक हीट का डेटा अवेलेबल है, सब कुछ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल इन लिटरेचर। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन यू आर गोइंग टू यूज टू इवैल्यूएट स्पेसिफिक हीट, वो भी अवेलेबल है। अगर कोई कोरिलेशन है तो उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, वो भी लिटरेचर में अवेलेबल है। किस किस टेम्परेचर रेंज में वो पर्टिकुलर ये कोरिलेशन फॉलो अप करेगा, वो भी अवेलेबल है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर नॉलेज। ठीक है, कि हम कितना जानते हैं और हमें कहाँ तक एक्सप्लोरेशन है, सो दैट वी यूज द लिटरेचर टू गेट आवर डिजायर्ड थिंग। सो नेवर थिंक कि सर ये पता लगा नहीं सकते, पता आप सब कुछ लगा सकते हो, बट द पॉइंट इज कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता लगाना है। डिड यू गेट मी? यस सर। Okay, shall we move ahead? यस सर। Okay, so once we provide the details for our hot stream and cold stream inlet, with one assumption that the hot stream inlet is having the mass flow rate of 10,000 kg per hour, we are moving ahead and I will press next. So once I press next, the Aspen will ask the details of block, that is my heat exchanger. I need to specify something on the basis of which the heat exchanger will perform its duty, and it will transfer the heat from one stream to the another stream so that desired temperature profile is achieved. So for the time being, let me tell you something that once we are dealing with this particular Aspen version, so we are limited to use this particular shortcut technique only, and we are not allowed to use these things. Whether if we are going for these two things, these things, so Aspen will ask you about the license part, so which are unfortunately not available with us. So we will be basically focusing on the shortcut techniques of simulation or designing the heat exchanger. Later on, I will tell you that why this particular method is known to be the shortcut technique. Okay, so what I said, for the time being, we are limited to use this particular technique, that is the shortcut technique of designing any heat exchanger, and we can opt this particular, but in this case, uh, the software will ask me for the regress, it will go to take us to the regress exchanger, in case which will ask us to the another template. So these particular things are very complex and beyond the scope of this syllabus, so I will not recommend you to go for these things for the time being, although you can go, but if you have the licensed version of Aspen, since it will incorporate other applications as well, so later on you will be finding those things. So for the time being, we will be skipping these things and we will be focusing on the shortcut method to design the distillation column, and I will be telling you later that why this particular technique is called the shortcut technique, so that you must have a very good idea about that we are using a shortcut technique and why we have considered this thing as a shortcut technique. You should know each and everything. Okay, so once we are going for this particular shortcut technique, we have to specify one single thing. So what we have to specify, we have to specify that the cold stream outlet temperature, the cold stream outlet temperature, it should be
it should be 300 Kelvin. Okay, because not cold. Yeah, because we are in need to heat this particular stream from 240 Kelvin to 300 Kelvin. So in the cold stream input data, I have provided this particular data, but in the while I am defining my block, that is my heat exchanger, I have specified that the cold stream outlet temperature should be 300 Kelvin. So based on the data that I have provided, Aspen will perform the simulation. And once I enter 300 Kelvin over there, it is turned blue. And when I press next, the Aspen will tell me that all the required input is complete and we are ready to run the simulation. So I will say okay. And बताइए सर वो कोल्ड स्ट्रीम का ही क्यों लिया, मतलब आउटलेट टेम्परेचर? तो आप क्या लेना चाहोगे बताओ? सर हॉट स्ट्रीम का हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो वो नहीं ले सकते? आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, बट मैंने कोल्ड स्ट्रीम इनलेट इसलिए लिया है क्योंकि हॉट स्ट्रीम के साथ आपने ऑलरेडी एक एजम्पशन लिया हुआ है, करेक्ट? अच्छा, यस सर। एजम्पशन लिया हुआ है, देखो अब फंडामेंटली देखो, मैंने किया है, मैंने हॉट स्ट्रीम का मास फ्लो रेट 10,000 kg पर आवर लिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ एस्पेन को कि हॉट स्ट्रीम आउटलेट टेम्परेचर शुड बी 320 डिग्री 320 केल्विन, करेक्ट? तो 10,000 पे बेस करके ही वो 320 केल्विन को अचीव कर लेगा, ठीक है? और अचीव करने से क्या होगा कि वॉट एवर हीट ड्यूटी दैट इज रिक्वायर्ड, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, करेक्ट? तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने हॉट फ्लूइड के केस में ऑलरेडी हमने एक एजम्पशन किया है कि उसका मास फ्लो रेट जो है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, इट्स एन अज्यूम्ड वैल्यू, सो वी शुड नॉट बी डिफाइनिंग एनी स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द हॉट स्ट्रीम। समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर, कि हमने ये अप्रोच क्यों अप्लाई किया है, ठीक है? यस सर। चलो, once we complete our simulation, we can go to our stream summary to see that और what सर happens. बाकी सर हमने इसलिए स्पेसिफाई नहीं किए ना, क्योंकि हमने पहली मतलब इनलेट टेम्परेचर हॉट और कोल्ड के डिफाइन कर दिए हैं, हाँ, इसलिए मैं इनलेट नहीं लिया, इनलेट वाला। नहीं समझा। हाँ, बाकी का तो ऑलरेडी डिफाइन था ना वो इनपुट वाला, तो इनपुट वाला वहां पे तो आप स्पेसिफाई करोगे नहीं ना, ठीक है? यस सर, यस सर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ तो यू कैन सी दैट द द कोल्ड स्ट्रीम इज हीटेड फ्रॉम 240 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री, सॉरी 240 केल्विन टू 300 केल्विन, ठीक है? हो रहा है कोल्ड इन कोल्ड आउट। हॉट इन जो है वो हमारा 350 केल्विन पे आ रहा है और हॉट आउट जो है वो 325 पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हमने 10,000 kg पर आवर का एजम्पशन लिया है तो उसके कारण जो आउटपुट टेम्परेचर है दैट पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग अराउंड 325 Kelvin, which is not desired because it has been mentioned that the output temperature should not be more than 320 Kelvin. So यहाँ पे 5 Kelvin का जो है वो फर्क आ रहा है। So what we have to do, we have to apply some design spec and sensitivity analysis to perform this particular thing. So I will be not going for that particular sensitivity analysis. I will be going for my design spec so that I can get the exact value of my of my mass flow rate of ethylene glycol. So यहाँ पे what I will do is I have just going for my flow sheeting option, then I have chosen the design spec and then I have created this particular DS1 which is my design spec 1, and I will be defining my variable on which I am currently focusing. So I am focusing on hot output temperature, okay? Hot output temperature, this is my variable which is nothing but a stream variable, and again I will be selecting this as stream variable, and this is the stream is my hot out and the variable is temperature, and that Kelvin, that unit is Kelvin. Always be consistent with the units that we use. So did you understand this thing? Because I will not explain this thing because I have already explained this thing in case in the last lecture. So how to do these things, you must be very clear till now कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या select करते हैं, and in case you find difficulty I will explain you. So did you get the thing? किस तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ सही है, तो हाँ पता लगा।
ये इजी है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि पता लगा। आपको अगर कोई नया प्रॉब्लम दिया जाएगा तो यू शुड बी एबल टू डू दिस थिंग। वो होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने स्ट्रीम वेरिएबल क्यों सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रीम वेरिएबल क्यों सिलेक्ट किया। क्लियर है क्यों किया है? सर एक बार बता दीजिए आप। चलो, और किसी को डाउट नहीं है, कोई और बताएगा? ध्रुव, कैन यू हियर मी? ध्रुव, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो ध्रुव। सजल, what happened? Sajal, I am audible to you. Can you hear me? Hello. सर हॉट स्ट्रीम आउटपुट टेम्परेचर पे चेंज आ रहा है, इसलिए तो नहीं लिया है स्टीम वेरिएबल। स्ट्रीम वेरिएबल क्यों लिया है? My question is that hot is hot, मेरा वेरिएबल तो ठीक है, चलो I am concerned about my hot stream outlet temperature. So whatever variable I have defined, that particular thing is in terms of hot output temperature. So chalo, for the time being the variable selection is correct, but why I have defined that particular thing as a stream variable? Guys, this will not work. Okay? If during the lecture if I ask some question, then you have to answer. क्योंकि it's a win-win relation. Okay, I am here to teach you and you are here to learn. So until and unless you are involved in this particular lecture, it would not be that much easy for me to make you understand that what these things are. And let me be very clear to you, all of you, that I really need to work very hard to make you understand all these things. It's not that easy for me that I wake up and I sit with my laptop and to just start to explain all these things to you. Okay, so please be much more responsible. Okay, and be responsive. So if I ask you any questions, so do pay attention to those questions and do respond. If you know, okay, then response. And if you don't know, then say at least that, sir, I don't know. That if you, it would be really, yeah, that if, then just ask me to explain that thing. I will be explaining you that thing. It's quite obvious that you should be not knowing these things because you are working with this thing for the first time. Okay, so the reason is that why I have selected the stream variable is that because the options that are available with this are, look at the options. The options that are available with us is all, blocks, streams, model utility, property parameters, and reactions. So do you really think that is there is any reaction? No, this option is gone. नो सर। Property parameters, are we concerned about that thing? No. So this option is again gone. Model utility, are we concerned about the utility? Do you know what does it mean by utility? Utility क्या होता है? पता है आपको? सर हीट रिक्वायर्ड। Exactly. Utility is the amount of heat required. ठीक है, या तो आप हीट, या तो सिस्टम आपको हीट देता है या तो आप सिस्टम को हीट देते हो। तो वॉट एवर इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज योर यूटिलिटी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे यूटिलिटी भी नहीं रहता है। अब ब्लॉक पैरामीटर किसे कहते हैं? लुक एट द टू थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। वन इज दिस ब्लॉक स्ट्रीम एंड वन इज दिस स्ट्रीम वेरिएबल। वन इज दिस ब्लॉक वेरिएबल एंड वन इज दिस स्ट्रीम वेरिएबल। सो ऑल भी आपका नहीं होगा, क्योंकि जब ये सारे कंडीशंस आपके प्रिवेल नहीं हो रहे हैं तो आप ऑल को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। So now we are remaining with only two things. One is my blocks variable and one is my streams variable. तो blocks variable क्या होता है? Block variable होता है आपका heat exchanger का variable. So heat exchanger में मैं आउटलेट स्ट्रीम का टेम्परेचर जो भी हो वो आउटलेट का टेम्परेचर है, वो हीट एक्सचेंजर का पार्ट नहीं है। ठीक है, और अगर वो हीट एक्सचेंजर का पार्ट नहीं है, दैट मींस इट्स नॉट योर ब्लॉक वेरिएबल। So ultimately, we are left out with only one single option, that is my stream variable. So we selected that thing. And conceptually, we are dealing with a stream in which we are required to control the temperature. That's why we should go for that. But we must know the logic behind the leaving the other options. Okay, that why I left सर the other option. हाँ बताइए।
सर ये प्रॉपर्टी पैरामीटर्स में मतलब क्या इंक्लूड होगा? Property विस्कोसिटी, parameters में होगा viscosity, surface tension, depending on the phase, then your specific heat capacity, then your density, then your volume, each and everything would be considered. Whatever the inherent properties we talk about. और सर आपने ब्लॉक का बोला ना कि मतलब ये हीट एक्सचेंजर के जो अंदर का होगा, तो मतलब हाँ। इसमें क्या होगा, इसमें क्या इंक्लूड होगा? मतलब क्योंकि इसमें आपके हीट एक्सचेंजर के अंदर की थिंग्स इंक्लूड होंगी। सर अगर मान लो कि मैं ये कहता कि आई एम वर्किंग ऑन द ट्यूब डायमीटर, ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन द ट्यूब डायमीटर सो दैट आई कैन इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया। सो अगर मैं बात करता हूँ ट्यूब डायमीटर की, तो ये क्या है, ये आपके स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, ये आपके ब्लॉक का पार्ट है, क्योंकि वो आपके हीट एक्सचेंजर के अंदर का पार्ट है। तो इन दोस केसेस अगर आपको मान लो आप यही टेम्परेचर वेरी कर रहे हो, बट आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे फ्लो रेट वेरी कर रहा हूँ, आप वहां पे ट्यूब डायमीटर को वेरी करते हुए आप वहां पे हीट ट्रांसफर एरिया वेरी कर रहे हो, सो दैट यू कैन अचीव अ डिजायर्ड टेम्परेचर प्रोफाइल। तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर योर ब्लॉक वेरिएबल, क्योंकि आपका जो ट्यूब डायमीटर वगैरह है वो ब्लॉक वेरिएबल में आता है। दैट थिंग इज नॉट योर स्ट्रीम वेरिएबल। यस सर, ओके सर, समझ गए? यस सर। Okay, I will press next. Now the spec is my hot output temperature. The target value is 320 Kelvin and tolerance limit I am giving as 0.001. Okay, so I will press next. And what I have to vary? What I am varying basically? किसका flow rate? सर हॉट स्ट्रीम का। So again it's a stream variable and I'm varying my hot in, correct? यस The सर। variable is mass flow and its unit is kg per hour. So till now we don't have any idea कि उसकी value क्या होगी, so I'm just providing a range 1000 to 20,000, क्योंकि हमने देखा कि 10,000 में भाई अराउंड 325 केल्विन आ रहा है, सो इस रेंज में तो वो फॉल करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये एक जस्ट रैंडम रेंज है, ठीक है, आप बहुत नैरो रेंज भी दे सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर, इट्स योर कॉल। तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने एक बड़ा सा रेंज दे दिया सो दैट आई कैन गेट अ वैल्यू इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, आई विल प्रेस नेक्स्ट and I will ask Aspen to run the simulation again, and my simulation is performed and I have the results available with me, and I can see from the result section in DS1 I have that the flow rate should be 8,330.97 kg per hour of my this particular hot stream, so that I can get the 320 Kelvin temperature in my output stream. So I will go to my stream summary. I will go to my stream summary. I will see then my then I'm able to see that my this particular thing is 320 Kelvin and the flow rate is mole flow. Let's look at the mass flow. Mass flow rate is 8,330.97. Okay. Okay, you tell me one thing that I haven't changed any input. Okay, मैंने input में कोई भी changes नहीं किया था, but आप देख रहे हो जो भी modifications आए हैं वो हमारे result summary में automatically adjust हो गए। But according to us, what was input? Input जरा आप check करो, input आपका क्या था? Input अगर मैं देखूं तो input था मेरा अभी भी 10,000 है। So do you know why my result summary or stream summary is getting affected? ऐसा क्यों हुआ एस्पेन में कि हमारा जो आउटपुट वॉट एवर स्ट्रीम समरी वी हैव अचीव, इट इज डिजाइन विथ न्यू वैल्यूज, उसमें न्यू वैल्यूज एंटर्ड कर दिए गए हैं। ऐसा पता है क्यों? व्हाई दिस थिंग हैज हैपेंड? क्योंकि हमने तो इनपुट चेंज नहीं किया, हमने बस एस्पेन को ये बोला कि भाई हमें बताओ कि अगर 320 केल्विन रखना है तो फ्लोरेट को मैं अगर वेरी करता हूं तो फ्लोरेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट आई कैन अचीव द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ माय हॉट स्ट्रीम टू बी 320 केल्विन। तो बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? सर स्ट्रीम वेरिएबल्स तो चेंज हुए ना सर, उसकी वजह से उसने आउटपुट को भी चेंज करके बताया सर एस्पेन ने।
नहीं तो फिर इनपुट को चेंज क्यों किया? आउटपुट तो चलो ठीक है, आई एग्री, Yes, sir. चलो आउटपुट यहाँ पे ठीक है, हॉट आउटपुट आपका सही है, बट व्हाट अबाउट दिस इनपुट? ये भी तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप कह अच्छा, सकते हो कि इसको तो सर हमने वेरी किया है कंसर्व। ना, मतलब हाँ इसको बताओ। तो हम मतलब इसको ही तो वेरी करना चाहते हैं, क्योंकि यही हमने एज्यूम किया था। वैरी करना चाहते हैं और वैरी करने में बहुत फर्क है। क्या हमने इनपुट वैरी किया? सर खाली मतलब हॉट स्ट्रीम का इनलेट वेरी किया, कहाँ किया? बाकी कुछ। कहाँ किया? ये देखो हॉट स्ट्रीम इनलेट देखो कितना है, 10,000 ही है। ये देखो इनपुट स्टिल इट इज 10,000। चेंज किया? नहीं किया। नहीं, यार नहीं तो फिर किया। तो फिर एस्पेन के पास जो डिजाइनिंग टूल्स है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द थिंग्स इन अ वेरी प्रिलिमिनरी लेवल, कि भाई आपके पास जो डिजाइन स्पेक है और सेंसिटिविटी एनालिसिस है, ठीक है, ये दोनों टूल्स जो है, आपका जो रिजल्ट समरी है, जो भी आपका स्ट्रीम समरी है और जो भी आप उसमें चेंजेस देख पा रहे हो, ये इसी कारण से देख पा रहे हो क्योंकि हमने डिजाइन स्पेक अप्लाई किया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर डिजाइन स्पेक के कारण ऐसा क्यों हो गया? अब मैं बताता हूँ। सेंसिटिविटी एनालिसिस जब भी आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीएस, दैट इज माय डिजाइन स्पेक, ठीक है। सर सेंसिटिविटी मतलब एनालिसिस, डिजाइन स्पेक आप कैसे मतलब बोल रहे हैं इसकी वजह से वेरी हुआ है? मैं बता रहा हूँ, लेट मी क्लियर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। Yes. Whenever we apply sensitivity analysis is performed by being out of the box, ठीक है। होता क्या है, जब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करते हो, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो टूल है, ठीक है, वो टूल एस्पेन के ब्लॉक को इफेक्ट नहीं करता है। वो आउट ऑफ द बॉक्स रहकर अपनी सेंसिटिविटी को परफॉर्म करता है और आपको अपने रिजल्ट्स बताता है। तो इट विल नॉट हैम्पर योर रिजल्ट्स। अगर मैं यहीं पर जो चीज मैंने डिजाइन स्पेक से अचीव किया है, अगर मैं यही चीज सेंसिटिविटी एनालिसिस से अचीव करता, तो मेरा जो भी है, ये जो आप रिजल्ट समरी में जो आप देख पा रहे हो, ये चेंजेस ब्रॉट इन नहीं होते, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस टूल ऐसा टूल है जो कि खुद को ब्लॉक के बाहर रहकर परफॉर्म करता है, वो ब्लॉक वेरिएबल्स को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ब्लॉक वेरिएबल्स के साथ स्ट्रीम वेरिएबल्स को भी इफेक्ट नहीं करता है, वो किसी भी वेरिएबल को इफेक्ट करता ही नहीं है। वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, whether it is a block, whether it is any stream, it will not affect a single thing of those things, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइन स्पेक, व्हाट वी हैव डन, हम बॉक्स के अंदर रह के काम करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक एग्जैक्ट वैल्यू अचीव करते हैं, which we doesn't do in case of sensitivity analysis. Sensitivity analysis के केस में हम एक स्पेसिफिक वैल्यू अचीव नहीं करते हैं, हम एक कंट्रोल वेरिएबल के रेंज में, सॉरी, एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल के रेंज में, एक कंट्रोल वेरिएबल के रेंज के लिए एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल के रेंज को ये करते हैं, स्टडी करते हैं, इन केस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, in which we do get a huge number of possible cases, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज इंटरवल दैट वी टेक। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, हमने लिया था 1000 से लेके 20,000 का एक गैप, एक रेंज ऑफ आवर हॉट स्ट्रीम इनलेट, दैट इज द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट स्ट्रीम, ठीक है, हमने उसका एक रेंज लिया था। तो अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करते, तो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर स्टेप साइज जो भी हम देते, तो हम 1000 से 20,000 तक हम उतने इंटरवल्स जनरेट करते हैं और उस इंटरवल रेंज में हम देखते हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर क्या क्या है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीज आपके एस्पेन के सिमुलेशन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई जो हमारा रिजल्ट समरी होगा वो सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करने से अफेक्टेड नहीं होगा। बट वंस यू परफॉर्म डिजाइन स्पेक, योर result summary will automatically be updated with the results whatever you have obtained with the help of your design spec, क्योंकि डिजाइन स्पेक आपको एक कंक्रीट वैल्यू देता है, इट विल गिव यू अ कंक्रीट वैल्यू कि भाई आपके आउटपुट फ्लो रेट इतना होना चाहिए टू अचीव दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इन योर हॉट स्ट्रीम आउटपुट। तो ये चीज ना ही सिर्फ आपको बताएगा, ये आपके ब्लॉक को अपडेट भी कर देगा, ये आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को भी अपडेट कर देगा, so that in the end whatever result you will see, you will be seeing this result based on this particular changes which the design spec has brought in. Am I clear?
सर बट इसने मतलब कहाँ किया, मतलब इनपुट में इसको वेरी कहाँ किया, मतलब ये क्या किया, वहाँ पे तो ये इनपुट में नहीं। यहाँ पे जाकर ये वेरी क्या किया, यहाँ पे वेरी किया ना, ये क्या किया? हाँ सर ये तो ठीक है, मतलब जहाँ पे हमने 10,000 लिया था वहाँ पे वेरी उससे नहीं वेरी किया। करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डीएस आपके, और डीएस हैज द पावर टू अपडेट, जो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस के पास नहीं है। इसलिए डीएस जो है वो ज्यादा रॉबस्ट आपका वो है, टूल है। इट ऑल डिपेंड्स द अथॉरिटी ऑन द अथॉरिटी ऑफ द टूल दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो रिजल्ट समरी को अपडेट करे, बट डीएस के पास वो चीज है। डिड यू गेट इट? जहाँ पे हमने सबसे पहले 10,000 लिया था, वो सर 10,000 ही जब, है, ये रहा। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे तो मतलब कहाँ अपडेट किया है इसने। तो यहाँ पे अपडेट क्यों करेगा वो, यहाँ पे अपडेट क्यों करेगा? यहाँ पे ये आपका इनपुट डेटा है ना, इस पे डीएस आपने थोड़ी अप्लाई किया है। आपने डीएस अपने सिस्टम पे अप्लाई किया है, जहां पे आपने ये बोला है कि आपका आउटपुट टेम्परेचर ये चाहिए, अब मुझे बताओ कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। आप डीएस ने आपको इसकी वैल्यू बता दी, वो इसे अपडेट नहीं करेगा यहाँ पे क्यों करेगा? जो भी अपडेट करना होगा, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 10,000, बट ये जो यहाँ पे समरी आप देख रहे हो ना, ये 10,000 पे बेस किया हुआ नहीं है, ये 8,331 पे बेस किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे 10,000 देखकर ये मत कंफ्यूज हो कि सर वहां पे 10,000 है, यहाँ पे 8331 है, तो सर किसके ऊपर रिजल्ट आए हैं? तो रिजल्ट इसके ऊपर आए हैं, जितने भी कैलकुलेशंस किए गए हैं वो इसके ऊपर किए गए हैं। 10,000 को एस्कन भूल चुका है जैसे ही आपने डिजाइन स्पेक अप्लाई किया, यस सर। समझे? डोंट गेट यस। कंफ्यूज। बट हाँ, ये चीज दिमाग में रखो कि डिजाइन स्पेक जो है वो पावरफुल टूल है, और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इनपुट को अपडेट कर सकता है, वो इनपुट के साथ चेंजेस ला सकता है अगर आपका वेरिएबल उस तरीके से डिफाइन किया हुआ है तो। और वो चेंजेस सिर्फ ला नहीं सकता है, वो लाने के बाद उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट भी कर सकता है। क्लियर? यस सर। चलो, तो ये तो हो गया भाई कि हम इस तरीके से हीट एक्सचेंजर को सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू विद आवर एस्पेन प्लस। तो यहाँ पे आपको एक हीट एक्सचेंजर का ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यस सर। यहाँ यस पे सर। मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस पे मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू कि आप एस्पेन प्लस की मदद से किस तरीके से मैकेनिकल डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि अब आप ये पूछोगे कि सर तब तो आप हर चीज का बताइए, भाई रिएक्टर का बताइए, आप डिस्टिलेशन कॉलम का बताइए, आप एग्जॉर्शन इसका एब्जॉर्प्शन टावर का बताइए, तो भाई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्जन के साथ जो फ्री लाइसेंस आपको एस्पेन देता है वो सिर्फ ईडीआर है, एंड ईडीआर स्टैंड्स फॉर योर एक्सचेंज डिजाइन एंड रेटिंग। सुन रहे हो मेरी बातों को, समझ पा रहे हो? इसका मतलब फ्री में आप सिर्फ हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करना सीख सकते हैं, बट अगर आपको कोई और इक्विपमेंट सीखना है तो आपको लाइसेंस बाई करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस। यस। तो अभी मैंने क्या क्लिक किया था, मैंने वहां पे हीट एक्सचेंजर क्लिक किया था, जिसके कारण मेरा एस्पेन प्लस मुझे हीट एक्सचेंजर ईडीआर में लेकर आ गया। दैट इज माय एक्सचेंजर डिजाइन एंड रेटिंग, एक्सचेंजर डिजाइन एंड रेटिंग। सो एक्सचेंजर डिजाइन एंड रेटिंग है क्या स्पेसिफिकली भाई? एक्सचेंजर डिजाइन एंड रेटिंग is is an app is an app like Aspen Plus, which is an inbuilt app of your Aspen Plus Aspen Tech software, जो कि आपको हीट एक्सचेंजर के मैकेनिकल डिजाइन में असिस्ट करता है, which helps you in the designing of any heat exchanger mechanically. Okay, so जैसे आप इसे खोलोगे तो यहाँ पे आपका एक्सचेंजर लिस्ट बनकर आएगा B1, सिंस आपका ब्लॉक वही था वो यहाँ पे, तो आप इसे साइज एक्सचेंजर कर दो तो वो उस ब्लॉक को कंसिडरेशन में ले लेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस, एरर्स एंड वार्निंग सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये चीज मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि देखो क्या क्या चीज अवेलेबल है एस्पेन प्लस में। वेदर आपको ये चीजें करनी नहीं है, यू डोंट हैव टू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको क्वेश्चंस में भी आएगा तो आपको बस एक हीट एक्सचेंजर सिमुलेट करना ही आएगा, ठीक है। तो आप उतना मत सोचो कि भाई क्या है, आपको बस मैं एक दिखा रहा हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो
यहाँ पे आप प्रोसेस पे आ सकते हो, देख सकते हो आपका जो प्रोसेस है, आप यहाँ पे यूनिट थोड़ा चेंज कर सकते हो, बिकॉज आई गेस इट वाज इन केजी पर आवर, और आप यहाँ पे यूएस की जगह डायरेक्टली आपसे चेंज कर दो मेट्रिक में, तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कि जो आप वहाँ पे सिस्टम फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर चलो ये तो सर आपने दिखा दिया, अब सर और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताइए। तो हाँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई, क्यों नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी हैव। सी ये चीज आपके एस्पेन प्लस में अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, जो कि आपके ईडीआर में अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या अवेलेबल है, तो देखो वहां पे जो है ना टेम्परेचर प्रोफाइल जो आपका ये पर्टिकुलर जो आपका हॉट, ये आपका क्या है, ये आपका हॉट स्ट्रीम है, ठीक है। हॉट स्ट्रीम प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो देख रहे हो 320 से लेके 350 के बीच इतने सारे इंटरवल्स पे ऑटोमेटिकली ईडीआर ने आपके लिए प्रॉपर्टी एनालिसिस की है, ठीक है। आपने उसे बोला नहीं है, उसने आपको करके दिया है। तो क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द डिजाइनिंग, हम यहाँ पे डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम डिजाइन की बात करते हैं ना, तो हम किसी एक पैरामीटर को फिक्स करते हुए नहीं चलते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका वो कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ देखना होता है, और आपको देखना नहीं होता, आपको सारे ऑप्शंस ईडीआर खुद बताएगा कि भाई देखो यही ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ बेस्ड ऑन योर कॉस्ट एनालिसिस आप चूज करो कि भाई आपको कौन सा लेना है, ठीक है। और ईडीआर का जो ये है, वेदर देखो बीइंग अ प्रोसेस इंजीनियर, talking about my experience, I am not that much professional level, I am not achieve that particular pro level, मैं भी बिगनर स्टेज पे ही हूँ। बट हाँ, जो भी प्रोसेस इंजीनियर होते हैं, जो इसको फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज करना जानते हैं, वो सिर्फ इसी को यूज करते हुए दे कैन प्रोवाइड द ड्रॉइंग ऑफ योर हीट एक्सचेंजर विच विल असिस्ट योर फैब्रिकेटर्स। क्योंकि प्रोसेस इंजीनियर का काम क्या होता है, प्रोसेस इंजीनियर का बीइंग प्रोसेस इंजीनियर हमारा काम क्या है, हमारा काम बस ये है कि हम अपने प्रोसेस को स्टडी करते हैं, और इस स्टडी को करते हुए हम एक मैकेनिकल डिजाइन तैयार करते हैं, दैट इज योर ड्राइंग। हम लोग बस ड्राइंग करते हैं, वी डोंट क्रिएट दैट थिंग। और हम उस ड्राइंग को तैयार करके हम देते हैं फैब्रिकेटर को। फैब्रिकेटर कौन होते हैं, जो हीट एंड ट्यूब एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो हीट एक्सचेंजर्स तैयार करते हैं। तो हम उन्हें अपना जो भी ड्राइंग है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उन्हें पास ऑन करते हैं, so that they can work on that particular thing and they can create the exact heat exchanger which is required by us to perform our desired process, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक दिखा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या है यहाँ पे। देखो सिमिलरली कोल्ड स्टीम प्रॉपर्टीज भी इवैल्यूएट कर चुका है आपका ये दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज योर एज ईडीआर। और यहाँ पे जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो जा रहा है, जैसे ये टेम्परेचर इतना हो जा रहा है तो यहाँ पे फेस चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो talking about this geometry summary, ठीक है। for the time being what I'm doing is I'm running this thing, मैं एक बार इसे रन करता हूँ। एक बार रन करने के बाद इसके रिजल्ट्स वगैरह जनरेट हो जाएंगे, देन आई विल बी एबल टू शो यू कि और भी क्या क्या चीजें हैं। चलो ठीक है, दीज आर द वार्निंग्स, क्योंकि हम लोग अभी डिजाइनिंग पे आ गए हैं, तो इट मे पॉसिबल कि हमें कुछ कुछ वार्निंग्स आए, क्योंकि हम बस एक रेट बेस्ड मॉडल को सिमुलेट कर रहे थे, एंड वी आर नो वे मतलब हम लोग कहीं भी ये चीज हमारे कंसर्न में नहीं था कि हम इसे रियल एप्लीकेशन हिसाब से करेंगे, सो दैट कि हम हर एक मतलब वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग एंड ईच एंड एवरी सिंगल पैरामीटर्स। सो एक्सक्लूडिंग ऑल दोस थिंग्स, हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वार्निंग्स आएगी, क्योंकि हम लोग इसे आइडियल मान के काम कर रहे थे। और आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास ऑप्टिमाइजेशन पाथ है। तो आप देखो ईडीआर ने आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद से इतने सारे रन्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है। खुद से उसने आपको खुद से इतने सारे रन्स परफॉर्म किए हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव प्रोवाइड, और आपको उसमें से सबसे अच्छा चूज करके ये बताया है, ठीक है, कि भाई ये जो है ये आपका सबसे अच्छा आपका तरीका है जिससे कि आप अपने डिजाइन को कर सकते हो। क्यों बताया ऐसे, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट इसी में लग रहा है। देखो $10,134 इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर। इतना कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है अगर आप डिजाइन कर रहे हो। आर यू पीपल गेटिंग मी, और यू पीपल गेटिंग बोर्ड और स्लिपिंग? सर आ रहा है, समझ आ रहा है। आ रहा है सभी को, आ रहा है कि सिर्फ तुम्हें आ रहा है? यस सर, यस। और भाई जगमोहन दीक्षित, वर्तिका कुशवाहा, मैं तो लक्ष्मी राजपूत, तो मेरा तो अभी डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी दोबारा आया। क्या हो गया सब लोग? थोड़ा चीयर अप हो जाओ भाई, मैं यहाँ पे 1 घंटे से बकवास कर रहा हूँ। ध्रुव अभी भी नहीं सुन पा रहे हो कि सुनना नहीं चाह रहे हो? जोक्स अपार्ट, ध्रुव कैन यू हियर मी, बिकॉज आई कांट। तो उसका माइक खराब है सर। अरे भाई साहब, तो फिर कैसे काम चलेगा यार वाइवा वगैरह में?
सर मतलब अभी इसी लेक्चर में शायद खराब है, देखिए वो ऑन कर रहा है और ऑफ कर रहा है। चलो कोई नहीं, I'm just kidding. थोड़ा सा यार जोक करना भी सही रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आई कैन अंडरस्टैंड कि बीइंग स्टूडेंट इज नॉट दैट इजी टू अटेंड दिस ऑनलाइन क्लासेस, और बीइंग टीचर इज ऑब्वियसली नॉट दैट इजी कि आप लोग को मैं एक स्क्रीन देखते हुए पढ़ा रहा हूँ. इट्स लाइक टॉकिंग टू समवन हु इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. तो चलो खैर, वी हैव टू डील विद दिस. तो मूविंग अहेड, आई वाज जस्ट शोइंग यू कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और ईडीआर ने आपके लिए इतने सारे रन्स प्रोवाइड परफॉर्म किए हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने कॉस्ट एनालिसिस भी की है, और कॉस्ट एनालिसिस करके उसने आपको बताया है कि दिस इज द थिंग दैट वी शुड गो फॉर बेस्ड ऑन माय कॉस्ट. ठीक है. Then you can go for recap of designs. Only I have one. The number of design that is suggested by your Aspen EDR is only one. That's why this has been suggested. Okay. So now looking at the TEMA sheet, do you know the full form of TEMA? What is TEMA? Or do you have any idea regarding the designing of heat exchanger? Anyone? तो वो कर्न मेथड पता है, कर्न जो क्या पता? गेट में जो सर पढ़ना पड़ता है सर. अच्छा, मतलब थियोरेटिकली पता है. थियोरेटिकली पता है. ऐसा कुछ होता Yes, sir. थियोरेटिकली पता है किस तरीके से डिजाइन करते हैं, यही कहना चाहते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. वो स्टेप्स जो होते हैं सर, 11 स्टेप्स. हाँ, वो तो थियोरेटिकल स्टेप्स है बॉस. बट इसमें जब आप देखते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें मैकेनिकल डिजाइन वगैरह में जो कि प्रोसेस इंजीनियर करता है. तो मैं आपको इतना एक्सपोजर बस इसी के लिए दे रहा हूँ कि आपको भी पता हो कि बीइंग प्रोसेस इंजीनियर हमें क्या क्या करना हो सकता है, क्योंकि what we learn in our theory, it's just the 50% of it. But when we enter the real application field, so we in the initial time we learn the things. ठीक है. ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप सीधा काम करने लगते हो. नहीं, इनिशियली आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है. वो ट्रेनिंग की जरूरत क्यों होती है? ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि भाई आप जो पढ़ रहे होते हो वो आधा अधूरा नॉलेज है. नाउ when once you complete your training, now you are ready to work in the real field. So मैं just आपको एक short overview दे रहा हूँ कि भाई होता क्या क्या है. तो TEMA basically it stands for Tubular Exchanger Manufacturers Association. जो लोग आपके हीट एक्सचेंजर का डिजाइन करते हैं, मतलब the one who create those things, उनका एक एसोसिएशन है, और उनके एसोसिएशन का कुछ स्टैंडर्ड है जो कि हर हीट एक्सचेंजर कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो फॉलो अप करती हैं. दैट्स व्हाई फ्रॉम देयर द नेम केम एज TEMA. द TEMA स्टैंड्स फॉर ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन arises, सर व्हाट इज TEMA शीट? देखो TEMA शीट क्या होती है, जस्ट लुक एट द थिंग. ठीक है. यहाँ पे स्केच अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो, बट अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल हुआ होगा या आपके पास लाइसेंस वर्जन होगा ना, तो यहाँ पे स्केच अवेलेबल होता है. ठीक है. इट्स नॉट अ इशू, मैं आपको स्केच दिखा पाऊंगा फिर भी, बट फॉर एनी रीजन, एनी टेक्निकल रीजन विच आई एम नॉट अवेयर अबाउट, यहाँ पे ये ड्राइंग अवेलेबल नहीं है. बट TEMA शीट में आपका ड्राइंग भी अवेलेबल होता है, एंड नॉट ओनली ड्राइंग, आपका सब कुछ, आपका फ्लो रेट हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन सेल, what should be your design temperature, what should be your corrosion allowance. You can see कि कितना एग्जॉस्टिव काम किया हुआ है EDR ने इस पर्टिकुलर शीट को जनरेट करने के लिए. आपका ट्यूब थिकनेस क्या होगा, ट्यूब लेंथ क्या होगा, पिच क्या होगी, ट्यूब पैटर्न क्या होगा. सो इट्स बेसिकली द मैकेनिकल डिजाइन. तो आप देख सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है एस्पेन का कितना एग्जॉस्टिव एक्सपोजर दे रहा है अबाउट हीट एक्सचेंजर. So let's talk about the mechanical summary so that we can see our drawing of it. ठीक है. अगर हमें ड्राइंग देखना है तो आप देख सकते हो कि आप जैसे यहाँ पे सेटिंग प्लान पे जाओगे तो दिस इज द ड्राइंग दैट एस्पेन हैज गिवन यू कि भाई इस तरीके का बन सकता है आपका हीट एक्सचेंजर, ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है. तो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट. आप देख पा रहे हो इसे? Yes, sir. ठीक है. Yes, ये sir. बेसिकली ED है, दैट इज योर इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हम लोग हाथ से बनाते हैं इन ग्रेजुएशन लेवल, इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आई गेस. ठीक है. तो ये चीज हम लोग प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन में भी करते हैं, बट इतने एग्जॉस्टिव लेवल पे हमें ये चीजें नहीं सिखाई जाती है इन ग्रेजुएशन कोर्स. बट हाँ, जो लोग सिर्फ डिजाइनिंग लेके काम करते हैं, या आप कह लो जो लोग सिर्फ मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, उनको एग्जॉस्टिव चीजें सिखाई जाती हैं, जो कि इन तरीके की चीजें होती है, इस तरीके की चीजें होती है. बट वो भी इस चीज को उतने इंटेंसिव तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो भी ये है वो उनका उतना कोर नहीं है जितना हमारा कोर है. सो दैट वी कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स इन वेरी स्पेसिफिक वे. तो ये हमारा भी काम होता है कि हम इस चीज को जाने
इन चीज़ों को एटलीस्ट हम लोग अवेयर हो कि हाँ भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर आप ट्यूब शीट लेआउट की बात करोगे तो हमारे यहाँ पे हमने ट्यूबुलर पिच दिया था, दैट्स व्हाई द अरेंजमेंट इज ट्यूबुलर पिच इज गिवन टू यू। और इस तरीके से आपके ट्यूब्स दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना एग्जॉस्टिव आपका ये सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर आपको कितना आइडिया दे रहा है अबाउट योर डिजाइनिंग पार्ट, कि आपका जो भी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, जो भी आपने अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर सकते हो, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिख सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वॉट एवर इज द पॉसिबिलिटी, एज वो आपको सब कुछ दिखा रहा है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई अगर जिसके पास पूरा फंडामेंटल्स है, the one who is aware of each and every single fundamental thing, then he is very much confident that he or she can draw that particular thing he or she can do this particular thing, तो वो इस चीज को सक्सेसफुली भी कर सकते हैं और वो एक फाइनल डिजाइन भी अचीव कर सकते हैं जो कि आपका व्हाट आई कैन से जो कि आपके प्रैक्टिकली भी फिजिबल होगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, कि ये जो टेमा शीट का जो ड्राइंग आपने अभी देखा जस्ट, ये शीट जो है ये आपका जो आपके प्लांट्स है जहाँ पे आप एक्सचेंजर्स वगैरह लगाते हो, मतलब जहाँ जो लोग इसका रियल एप्लीकेशन करते हैं, दे डू एक्सेप्ट दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि सर मान लो हमने सीख लिया, हमने ईडीआर को यूज करते हुए डिजाइनिंग सीख लिया, ठीक है, हमें सब कुछ आता है, हम कर सकते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो हाँ, ये एक्सेप्टेबल है। आप कहीं पे भी ये पर्टिकुलर टेमा शीट जो कि आपका एस्पेन ईडीआर आपको दे रहा है, आप इसे सबमिट कर सकते हो, और देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच डू एक्सेप्ट these sheets. Okay, so this is all about your heat exchanger design and rating, and I hope that you are able to understand this particular simulation thing, that how we can perform the simulation of our heat exchanger, and in this way we can carry out the design of our heat exchanger. And I hope this thing is pretty much clear to you all. Yes, sir. Yes, sir. So let's take a break of 10 minutes and I will be back by 11:26. Okay? Okay, sir. Is it okay? चलो, let's take a break and cheer up guys, cheer up, cheer up. चलो, थोड़ा सा और बाकी है. Okay, see you all in 10 minutes. Okay? Yeah. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Okay, sir.
हेलो हेलो, यस सर, यस सर, तो सब लोग आ गए? यस सर। अरे भाई आ गए तो बताना चाहिए, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। चलो देखो पीपीटी में मैंने ये ऐड कर दिया है, ठीक है ना, कि किस तरीके से आर स्ट्राइक मॉडल को आप सिमुलेट कर सकते हो। तो आप एक बार देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऑल्दो कोई दिक्कत ज्यादा होनी नहीं चाहिए इस मॉडल को प्रैक्टिकली सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, ठीक है। आर स्ट्राइक मॉडल जो है बहुत ही सिंपल मॉडल है, जो कि आप जहाँ पे कि आपका टाइप ऑफ रिएक्टर, द टाइप ऑफ पैकिंग, द टाइप ऑफ मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द रिएक्टर इज नॉट कंसिडर्ड। तो आपको बेसिकली बस एक रिएक्टर है ये, जो कि आपका एक रिएक्शन परफॉर्म करता है डिपेंडिंग ऑन द टू थिंग्स, वन इज योर यील्ड एंड वन इज योर कन्वर्जन। तो आपको वो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे आपका, मैं दो चीज आपको स्पेसिफाई कर दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फ्रैक्शनल कन्वर्जन का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा होता है जब आप रिएक्शन स्टेप पे जाओगे ना। आप स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करना, आप देखना आपके सामने आता जाएगा। बट यहाँ पे जहाँ पे फ्रैक्शनल कन्वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और चीज आएगी जो कि इसको यील्ड कहते हैं, ठीक है, यील्ड। तो बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स, हाँ स्क्रीन नहीं दिख
सर स्क्रीन नहीं विजिबल है। स्क्रीन नहीं विजिबल, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? विजिबल है सर हमें। स्क्रीन तो हमने विजिबल है। सर विजिबल है। अब विजिबल। यस दिख रहा है? यस यस सर। यस अच्छा चलो, मैं ये कह रहा था कि देखो ये जो बेसिक मॉडल है ना, ये फंडामेंटली दो पैरामीटर्स पे काम करता है, ठीक है। वन इज योर फ्रैक्शनल कन्वर्जन, जो कि आपका बेसिकली आप जिस कन्वर्जन, आप जानते ही हो कि कन्वर्जन क्या होता है भाई, कि हमने मोल फीड किया, कितने मोल रिएक्टेड में है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट योर कन्वर्जन। सो या तो आप कन्वर्जन के बेसिस पे इस रिएक्टर को डिफाइन करो, या तो आप यील्ड के बेसिस पे इस कन्वर्जन को डिफाइन करो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसमें बहुत बहुत ही इजी चीजें हैं और इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, तो आप इसे खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बी व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू सिमुलेट अ CSTR एंड PFR। बट हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इस पीपीटी को ऐड कर दूंगा, ठीक है, बट मैं इस पीपीटी को अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल टेक फ्यू डेज टू ऐड दिस पर्टिकुलर पीपीटी इन आवर MS टीम ग्रुप एंड आई विल बी एडिंग ऑल दी कमेंट्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो कमेंट्स मिसिंग है इसमें, क्योंकि मुझे मतलब फॉर द टाइम बिंग मैं उतना टाइम नहीं दे पाया हूँ इस पे कि मैं इसमें सब कुछ ऐड अप कर दूं, सो दैट आई विल बी एडिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इंक्लूडिंग द कमेंट्स। बट हाँ, आपको करना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दूं। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बट अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज योर CSTR, ठीक है। इस CSTR के क्वेश्चन में मैं आपको एक पार्ट तो उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वॉट एवर सेकेंड पार्ट इज देयर इट इज लेफ्ट ओवर फॉर यू, आपके लिए वो छोड़ दिया जाएगा सो दैट आप उसे परफॉर्म करो, एंड इन द लेटर लेक्चर वी विल डिस्कस दैट थिंग, ठीक है। So for the time being, we will be focusing on our CSTR model, and for considering that thing, we have considered this particular problem statement, and the problem statement tells us that perform design calculation with any kinetic reactor, that is for PFR or CSTR, determine the volume necessary to produce 300 million pounds of ethylene a year from cracking a feed stream of pure ethane, ठीक है। आपका प्योर इथेन जो है वो फीड है, द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल एंड एलिमेंट्री, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 60% conversion of ethane operating the reactor isothermally at 1150 Kelvin and a pressure of 5 atm, and the reaction has been given to you, which is a vapor phase reaction, because you can see all the reaction constituents are available in this particular vapor phase, and the data which has been given to you is I think this is rate constant data, that is 0.072 per second. It's the first order reaction at 1000 degrees Celsius, and the activation energy, that is your EA value, is given to you. Okay, so let's go to Aspen Plus. So tell me one thing, whatever I'm teaching you, are you really able to understand those things? समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में किसी को भी? नहीं सर, ऐसा दिक्कत तो नहीं होगी, अभी थोड़ा सा मतलब करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा चीजें। तो कब करोगे? सब मतलब कर रहे हैं बट एकदम से नहीं हो पा रहा ना। चलो, हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या है? हमारे पास कंपोनेंट्स है C2H6, C2H4 और H2। तो C2H6 को हमने ऐड कर दिया, C2H4 को हमने ऐड कर दिया, और H2 को हमने ऐड कर दिया। H2 को ऐड नहीं किया, H2 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है जिसमें हमने कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। अब देन प्रेस नेक्स्ट, then the model selection for the particular this model I will be going for Chaucer, then I will press next and I will go to simulation environment. हर का सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का प्रोसीजर एक ही है, बट हाँ जब आप मॉडल्स पे आते हो तो वहाँ पे कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि ब्लॉक स्पेसिफिकेशन जो है वो हर चीज का अलग अलग है। So for the time being, we are interested in CSTR model, so we will navigate to this reactor section in this model palette, and we will be selecting this RCSTR. And once we press over there, and then we press over here, and I will enlarge it, and here we can see this is our required CSTR. Now I will be adding my streams. This is my feed stream, and this is my output stream. Okay, so we are done with this.
1 is our feed stream and 2 is our output stream, and we are with this B1, which is our CSTR reactor. So again, we will press next. Then the data regarding this particular thing will be asked to us. That is our feed input. That is your stream number 1. As you all can see, that no data regarding that stream 2 is required because it's the rate-based model, and the output will be generated as per its specifications, which has been already made. So we need to feed in the data for our input. So यहाँ पे जो अब रिएक्टर जो है वो इस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, तो वी विल कंसिडर कि हमारा जो फीड भी है वो भी इस टेम्परेचर पे ही आ रहा है, दैट इज योर 1150 केल्विन, एंड योर दिस इज 5 atm और 5 bar, it is 5 atm, and there is no flow rate is given, although it is given कि we need to produce 300 million pounds of ethylene a year. तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अगर आपको इतना प्रिपेयर करना है तो आपको कितना फ्लो रेट चाहिए, ठीक है, आप वो अप्लाई करके आप वो मोल बैलेंस लगा कर निकालोगे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि मोल फ्लो जो है वो मेरा किलो मोल पर सेकंड पे हो रहा है, एंड दैट वैल्यू ऑफ इथेन इज 1, ठीक है, दैट्स इट. तो यहाँ पे मैंने इसे मैंने कंसिडर किया है, बट हाँ ये आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होगा, ऑल्दो इस क्वेश्चन में भी गिवन है, बट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 300 kg नॉट केजी, इट इज मिलियन पाउंड्स ऑफ इथिलीन अ ईयर जो भी आपको प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए व्हाट इज द डिजायर्ड फ्लो रेट is that is required of ethane, it should be calculated by you, and whenever you will be simulating this particular model, you will use that particular thing because the required conversion is 60%. So taking the amount that you have to produce and taking the conversion into picture, you have to evaluate the flow rate, and I know that you should be able to do that thing, so I am leaving that thing up to you. So you should do that thing and you should perform your simulation accordingly. Okay, so providing the data, I will press next, and now the specification regarding the block is required. So the block is operating at the same pressure, and the temperature is, I will consider the same, that is 1150 Kelvin, and the reaction is happening in the vapor phase only. By default, this particular thing is selected. Keep this thing in mind that we have to be consistent with the phase that has been selected, that my reaction is taking place in the vapor phase, that's why this particular thing I am leaving. This thing is, although this thing is appearing automatically, I can switch this thing. If I can think that my reaction is taking place in liquid only, then I will be selecting this. If reaction is taking place in both the phases, then I will be going for vapor liquid. But for the time being, the reaction is only taking place in vapor only, vapor phase. So that's why I have selected this particular option, and the reactor volume is required. So for the time being, let us say, since we have not been provided with this particular data, what we will do, we will assume one value, what is the size of our particular reactor. So let us say we have one reactor with the volume of 4000 liters. Okay, 4000 liters. So once we are done with this, now we can see there is a reaction tab, but once we go to reaction, there are available reaction set is empty since we haven't added any reaction yet. Okay, so what we will do, look at this step very carefully. Since we are going for the simulation of CSTR and we are doing with reaction as well, so यहाँ पे हमें block specification देना है, but once I press next, it will be taking me to this particular tab, but in this particular tab, there is no reaction available since we haven't added any reaction yet. ठीक है, so to do this thing, what you have to do, just navigate to your navigation pane. यहाँ पे आप navigation pane पर आओगे, there you can see your reactions. Click on that. I will be creating new. This reaction is my R1 automatically. Just let it be that thing and select type. Among selection type, I'm making available with these following options. So यहाँ पे आपको confuse नहीं होना है. For the time being, we are going for power law. Now the question arises कि सर power law ही क्यों select किया? अब power law हमने इसलिए select किया है क्योंकि आप जब reaction rate को लिखते हो, ठीक है, rate को आप कैसे लिखते हो? When you define any reaction rate, आप rate को कैसे लिखते हो? पावर लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हो. रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन कैसा दिखता है आपका? दैट इज योर R इज इक्वल टू समथिंग रेट कांस्टेंट K इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग. ठीक है, होता है ऐसा ही होता है. तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज योर पावर लॉ एक्सप्रेशन.
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पावर लॉ सेलेक्ट किया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे पावर लॉ सेलेक्ट किया है, और देन आई विल से ओके एंड आई विल से न्यू. So this is my reaction number 1. सर This बट वो रिएक्शन तो मतलब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, ये वाला जो आपने ये लिया है इस क्वेश्चन में, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या मतलब हाइड्रोजनेशन वाला? क्या ऑप्शन होना चाहिए आप बताइए. सब मतलब मैं वही पूछ रही हूँ, मतलब नहीं है ऐसा. नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं. वहां पे देखो, बेसिकली आपको काइनेटिक्स का टाइप देना होता है, ठीक है, काइनेटिक्स का टाइप देना होता है. अगर मैं यहाँ पे से बंद करता हूँ, अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक पे मेन फ्लो शीट पे आके अगर मैं रिएक्शंस पे आता हूँ R1, चलो लेट अस डिलीट दैट थिंग. मैं इसे डिलीट करता हूँ फिर से आई विल बी कमिंग बैक टू दिस थिंग. अगर आप यहाँ पे टाइप देखते हो ना, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन टाइप दिया हुआ है. तो डू यू रियली सी दैट कि यहाँ पे अवेलेबल है वो डिहाइड्रेशन नहीं है? और डू यू हैव एनी आइडिया, आपके पास आइडिया है कि वो कैसा होता है? मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर होता है, चलो पावर लॉ तो एक काइनेटिक्स होगी, एक टाइप का काइनेटिक्स हो गया. क्या आपको काइनेटिक्स के बारे में कोई आइडिया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ नो काइनेटिक्स सर. डज इट फॉलो और इट शुड फॉलो? देखो ये सारे के सारे काइनेटिक्स है, ठीक है, ये सारे के सारे काइनेटिक्स है, बट हर काइनेटिक्स का एक अलग तरीका है, ठीक है. पावर लॉ कहने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि भाई वो पावर लॉ के अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन रेट तैयार होगा, ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि पावर लॉ हमें एक एक्सप्रेशन देता है. एक एक्सप्रेशन किसका देता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देता है, दैट टू इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो हमें इन चीजों पे क्यों, देखो अब मैं यहाँ पे पावर लॉ पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस बेसिक को पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है. आपने पावर लॉ के अलावा और कोई काइनेटिक्स पढ़ी है अभी तक? नो. तो फिर इसीलिए ना कि देखो, बेस्ड ऑन आवर नॉलेज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दोस थिंग्स. तो आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो. ये LHSW, ये इसका मैं फुल फॉर्म ये है, आई थिंक लैंगम्यूर हिजल समथिंग. हाँ वो ये भी एक काइनेटिक्स है, आप इसका भी स्टडी कर सकते हो. बट हाँ, सारी काइनेटिक्स अपने टाइप की होती है. तो यू नेवर नो कि भाई आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो किस काइनेटिक्स को फॉलो अप करेगा. बट हाँ, कन्वीनियंस के लिए एट मैक्स जितने भी रिएक्शन होते हैं हम लोग उससे पावर लॉ से ही करते हैं, क्योंकि ये जो है ये हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, करेक्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लास 11 यू स्टार्ट दिस थिंग, एंड केमिक CRE में भी आप जब भी लिखते हो एक्सप्रेशन तो आप पावर लॉ के टर्म्स में ही लिखते हो. So I will be pressing OK, then I will be creating my reaction. और यहाँ पे आपको रिएक्शन 1 है, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट सेलेक्ट करना है. तो रिएक्टेंट आपका क्या है? C2H6 कोफिशिएंट 1. Once you click outside, it will automatically appear as -1 because it is reactant and the coefficient should be -1. Exponent क्या होगा? 1. 1. क्यों? Exponent is your power, ठीक है. रिएक्टेंट आपका एक ही है. वी विल कमिंग बैक टू प्रोडक्ट में क्या क्या है? C2H4 है. कोफिशिएंट कितना है? 1 है. और एक्सपोनेंट कितना होगा? एक्सपोनेंट 1 होगा. यस सर, +1 होगा ना पक्का? यस सर. भाई मेरे, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यस सर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. डज आई सेड प्रोडक्ट? डिड आई सेड प्रोडक्ट? यस सर. और अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर 1 एक्सपोनेंट क्यों होगा? 0 होगा सर. 0. तो जस्ट लीव इट एज इट इज, ठीक है. इट विल बी कंसीडर्ड एज 0 ओनली. क्लियर है ये वाला पार्ट? कैसे किया, क्यों किया? यस सर. रिएक्टेंट को ऐड किया, कोफिशिएंट डिफाइन किया 1, बाहर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली -1 हो गया क्योंकि वो रिएक्टेंट है. एक्सपोनेंट 1 इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ऑन इट विल डिपेंड, ये काइनेटिक्स डिपेंडेंट है, ठीक है. हमने काइनेटिक्स यहाँ पे चूज किया है पावर लॉ, तो हमें एक्सपोनेंट बताना पड़ेगा कि रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट कितना है, ठीक है. आप इसे चेंज करके आप रिएक्शन का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो फिर वो उस तरीके से चेंज करता रहेगा. आप इसका खुद का स्टडी, आप इसे खुद भी स्टडी करके देख सकते हो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है तो कन्वर्जन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है तो कन्वर्जन क्या है, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो आई विल प्रेस नेक्स्ट एंड वंस आई प्रेस नेक्स्ट. बट जनरली हम इसको एलिमेंट्री मान के ही करेंगे.
हाँ एलिमेंट्री मान के ही करोगे, और एलिमेंट्री मान के करने का कारण भी है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री है। ये देखो लिखा हुआ है द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल एंड एलिमेंट्री। हाँ ठीक है सर। आपको क्वेश्चन में इनफ डेटा दिया हुआ रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट। इनफैक्ट आपको अगर क्वेश्चंस मतलब एग्जाम जब इसका एग्जाम होगा उसमें भी जो क्वेश्चंस होगा, सो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वुड बी अवेलेबल टू यू, मतलब मैं पूरा डेटा आपको दे दूंगा। सो लेट्स लुक इनटू दिस पिक्चर। यहाँ पे हमें काइनेटिक्स पूछा जा रहा है रिएक्शन का, ठीक है, हमें यहाँ पे काइनेटिक्स पूछा जा रहा है रिएक्शन का। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट डिफाइनिंग द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या स्पेसिफिकली, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। पावर लॉ काइनेटिक एक्सप्रेशन के लिए इफ टी नॉट इज स्पेसिफाइड, दैट मींस इफ वी नो द वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, then we will be able to evaluate the value of rate constant at another temperature, correct? यस सर। Using this particular expression, आप इसे यूज करते हुए दूसरा के निकाल सकते हो अगर आपको एक टेम्परेचर पे एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है। एक्सप्रेशन को देखते हुए लग रहा होगा कि सर सब कुछ तो ठीक है बट कहां से ये n आ गया है, ठीक है, तो व्हाट इज दिस n? सर वही सर ऑर्डर नहीं ऑर्डर कहां से हो जाएगा बच्चे? सर ये वो एक्ट में जो होता है सर, जैसे सर पावर लो कौन सा पावर सर मतलब कोलिजन 0 हाफ या 1 थ्योरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। Exactly. N corresponds to the theory on which you are defining your power law kinetic expression. N is equal to 0 for, Arrhenius theory। then for collision theory, हाफ। सर 1/2 और ट्रांजिशन के half. लिए And 1। if it is for transition state theory, it is 1. यस Correct? तो डिपेंडिंग ऑन दैट बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे देखो n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको 0 दी गई, ये मैंने इनपुट नहीं किया, मतलब हम लोग आर्हेनियस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और रहा सवाल इसका, इफ टी नॉट इज नॉट स्पेसिफाइड, तब आप काइनेटिक फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो फिर काइनेटिक फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वो आपका ऐसे निकलता है। बट अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा है k का, दैट इज योर रेट कांस्टेंट, वो एक टेम्परेचर पे हमारे पास दिया हुआ है। दैट मींस कि हमारे पास यहाँ पे 1000 नहीं, इसका डेटा है 0.072। माइंड इट कि यहाँ पर आप SI यूनिट को फॉलो करते हुए ही दोगे, तो बाय डिफॉल्ट SI यूनिट के अकॉर्डिंग आपका रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकंड ही होना चाहिए, करेक्ट? तो आपका इसीलिए मैंने 0.072 दे दिया, ठीक है। बट अगर मान लो आपका वो पर आवर होता या पर डे होता, आपको उस चीज को पर सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे देना होता। एम आई क्लियर? Yes sir। So when you feed in the data for k, so make sure that you have, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो लिखा है लेट्स यू टाइप द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन SI यूनिट, तो आप इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पे SI यूनिट में ही लिखना है, तो दैट्स व्हाई आई एम रिटन है 0.072, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव इज 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे CI बेसिस है, इसलिए यहाँ पे मोलैरिटी छोड़ देना और कुछ मत करना, दैट इज CI इज कंसंट्रेशन बेस्ड काइनेटिक्स, और कुछ नहीं, ठीक है। एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है, हम लोग जिस रिएक्टर के साथ डील कर रहे हैं उसका हमने वहां पे जब वो किया था तो वो वेपर फेज था, करेक्ट? याद होगा आपको, मैंने वहां पे लिखा था वेपर ओनली, मैंने वहां मेंशन किया था। बट यहाँ पे देखो रिएक्टिंग फेज यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर so that the consistency regarding the phase is maintained. Clear? Yes sir। Clear? Then I will press next. Yes सर ये मोलैरिटी Okay, का okay, molarity. मतलब ये हाँ क्या हुआ बताओ? सर ये मोलैरिटी यहाँ पे लिया है ना, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई अलग अलग रहा तो, मतलब अलग टाइप की काइनेटिक्स हो तो तुम चेंज कर सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग मैंने क्या कहा कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो रेट एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट?
तो यहाँ पे देखो तुम्हारे यहाँ पे इसलिए CI लिखा हुआ है कि ये जो है ये बेसिकली मोलैरिटी जो है वो आपका कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो हमारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिजाइन किया हुआ रहेगा, क्लियर है। इसलिए मैंने यहाँ पे मोलैरिटी छोड़ दी है, ठीक है। अगर ये वेरी कर सकते हो आप, अगर आपके पास अलग अलग काइनेटिक्स अवेलेबल है तो आप इसको वेरी कर सकते हो, वो अप टू यू, इट्स अप टू यू। बट फॉर द टाइम बी वी हैव कंसीडर्ड कि जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है वो कंसंट्रेशन बेस्ड काइनेटिक्स है, और उस कंसंट्रेशन में हमारे रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही सिर्फ आ रहा है, दैट टू द पावर 1। तो एक्सपोनेंट में हमने 1 डिफाइन किया था, और यहाँ पे हम लोग उसका बेसिस जो है कंसंट्रेशन बस छोड़ दे रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके साथ आप और इंडेक्स जा सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग ये हम मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स का वो स्कोप है नहीं, तो हमें बस यहाँ पे एक सिमुलेशन करना है कि मुझे इतना ये सिखाना इसलिए है क्योंकि आप लोग जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन उसमें कर रहे हो ना, एक्सपेरिमेंटल में क्या परफॉर्म कर रहे हो, आई थिंक सीरीज CSTR है ना सर। एक्सपेरिमेंटल लैब जो उसके पैरेलल में चल रही है, उसका एक पार्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग लैब भी है ना, CRE भी है ना, एडवांस CRE है ना, उसमें वो हो चुका है। सर सीरीज और सर मतलब CSTR और PFR वाला हुआ है तो CSTR के केस में क्या परफॉर्म किया है सर, मतलब कि एक CSTR है और एक PFR है, ऐसा वाला हुआ है, मतलब कि सीरीज ऑफ ठीक है, CSTR एक ऐसा नहीं हुआ। CSTR एक PFR है, क्या किया है एग्जैक्टली, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। बताया है सर अभी, बस वो सीरीज में होंगे या मतलब सीरीज में लगे होंगे, पहले कौन सा क्या अरे मतलब चेंज कर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भी बताया गया हो ये तो बताओ कि मुझे रिएक्शन क्या करवा रहे हो, कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या पर्टिकुलर रिएक्शन करवा रहे हो, ये इसके बारे में आइडिया है कि सिर्फ मतलब बताया ही नहीं गया अभी तक कुछ भी, कि सिर्फ सर ये बताया बताया गया है कि सीरीज बताया गया ना, तो क्या बताया गया है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। सर, मतलब ये बताया गया है कि एक दो मतलब रिएक्टेंट है, एक NaOH और एक इथाइल एसीटेट, तो उसका सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है, ये वाला हाँ तो रिएक्शन है। ये करना तो है, ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो आपका काम ये होगा कि आप जो एक्सपेरिमेंटली आपको जो चीजें बताई जाएंगी, करवाई तो जानी संभव है नहीं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो वॉट एवर जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी वो चीजें आपको एस्पेन में करके देखनी है, समझ गए। हाँ सर, वो मैम ने बोला था। हाँ हाँ तो वही चीज आपको एस्पेन में करके देखनी है कि ये चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है। और इसी चीज में आपका फॉर्मेट वो सबमिट होगा। तो ऑल दो अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको सारा असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के टर्म्स में दूंगा, तो जब मैं दूंगा आई विल बी टेलिंग यू द सबमिशन डेट, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ अपना प्रैक्टिस वो रखो, कैरी ऑन रखो, सो दैट कि आप जब उस लेवल पे आओ तो आप उसे कर पाओ, ठीक है। तो अभी बस आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। तो सर, यहाँ पे मतलब मैंने ये वाला सारा वो हमें एस्फिन में करना होगा ना, जब आप बताएंगे हम लोगों को, क्योंकि सर मैम ने बोला था कि मतलब मैम बताएंगी, मैं बट नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें एस्पेन बताऊंगा, मैं हाँ तुम्हें सर। वो पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं बताऊंगा, वो एग्जांपल तुम्हें खुद से करना है। जो नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ इतना ही सफिशिएंट है तुम्हें वो एग्जांपल करने के लिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई विल गिव यू कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सैचुरेशन रिएक्शन का, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, जितना भी कंसंट्रेशन होगा, जो भी आपका फीड कंपोजिशन होगा, वॉट एवर इट इज, आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट एस्पेन सिमुलेशन यू हैव टू परफॉर्म, इन दैट थिंग आई विल नॉट हेल्प यू। ओके सर, ठीक है। समझ गए। एक्सपेरिमेंट में जो आपको करना है वहां पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, वही थ्योरी का मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि हाँ भाई चलो ऐसा ऐसा है, अब ये सिमुलेशन करके मुझे दिखाओ। और अभी जो आपको बता रहा हूँ ये उसी का बेस है, बेसिक लेवल पे है, इसी को यूज करते हुए आप उसे भी सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक्स को डिफाइन कर दिया है। आई विल प्रेस नेक्स्ट, एंड वंस आई प्रेस नेक्स्ट द एस्पेन प्लस विल नेविगेट मी टू दिस पर्टिकुलर फुल। और जो ये पहले एम्प्टी था क्योंकि हमने कोई रिएक्शन सेट ऐड नहीं किया था, नाउ देयर इज R1 अवेलेबल फॉर मी टू सेलेक्ट, एंड आई विल सेलेक्ट R1 एंड आई विल take it to the this particular reaction set which is selected reaction set, and I will press next and I will say okay, and my simulation is performed. So this is the way in which you can simulate your CSTR as well, ठीक है। आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है, बट हाँ देयर विल बी फ्यू एम्बिग्यूटी क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कुछ assumptions लिए हैं। Can anyone tell me what assumption I have made? Can सर anyone tell me?
इरिवर्सिबल है। elementary and irreversible is not the assumption, it is given to me in the question. assumption क्या है? what is the assumption? सब वेपर वाला लिया था ना वो। पेपर सर वाला assumption हमारी काइनेटिक्स पावर लॉ के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। नहीं, कुछ भी, ये सब assumption थोड़ी है यार, ये सब तो बेसिक है। बताओ, हीट एक्सचेंजर पढ़ाया, इतना सिखाया, assumption किसे कहते हैं? इस केस में assumption क्या लिया है? एक ही assumption लिया है। सब अगर वेल मिक्स्ड है। हाँ, वेल मिक्स्ड है। वेल, ये assumption कहाँ से आ गया भाई? वेल मिक्स्ड है, तुमने देखा मैंने कहीं स्पेसिफाई किया है कि माय मिक्सचर इज वेल मिक्स्ड? वो तो CSTR का ऑटोमेटिक assumption है, वो तो भाई, वो तो प्री डिफाइंड है, वो तो होना ही है। मैंने क्या assumption लिया मैनुअली? मैंने क्या assumption लिया है? मैं वो पूछ रहा हूँ सर ऐसा यूनिट लिया सबका। ना। अरे यूनिट पे assumption का क्या है भाई? वो तुम यूनिट चेंज कर लो, तुम्हारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यूनिट पे assumption का क्या है? आई एम concerned about the assumption which I have made regarding the process. सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर शायद ना 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 अरेनियस थ्योरी है। ना सर रिएक्शन नहीं, रिएक्शन भाई, रिएक्शन तो हो ही रही है। टेल मी गाइस, टेल मी। सर मॉडल मॉडल CSTR ही लगना है, क्या दिक्कत है? इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बोलकर निकल भी गया, लोगों को पता तक नहीं चला। यहाँ पे दिख रहा है? यस सर वॉल्यूम। ये है एकमात्र assumption। क्वेश्चन में रिएक्टर के साइज के बारे में कुछ दिया हुआ है? नो सर। Whatever conversion I will achieve, whatever flow rates I will achieve in the output stream, everything will depend on this particular thing. Got it? यस सर। तो यहाँ पे हमने एक assumption माना था जो कि था the size of our reactor. So assuming this particular size and looking at the stream summary, we can say that we are achieving around what? No conversion. Correct? Almost zero conversion. Correct? यस सर। यही हो रहा है ना? यही हो रहा है ना? Let us change it. Let's make it 3000 and again run the simulation. Results are available. Let's look at the summary and we can see it is again much more decreased. So आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इस चीज का इफेक्ट, why I am looking at आप फ्रैक्शंस में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अवेलेबिलिटी है वो रह जा रहा है, ठीक है? दैट मीन्स कन्वर्जन इज क्वाइट लो। तो यहाँ पे अगर आपको 60% कन्वर्जन करवाना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 60% कन्वर्जन करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने ये इंडिकेट किया है कि 60% कन्वर्जन ऑफ इथेन ये होना चाहिए। So now it is your duty to tell me what should be the reactor volume that I should take. ठीक है, इसे मैं रेड से इंडिकेट कर दे रहा हूं और इसे आप मुझे बताओगे कि what should be the reactor volume that I must take to get 60% conversion of ethene. Got my question? और कैसे अचीव करोगे? By applying design spec. यस सर। ठीक है, मैंने दो जगह पे डिजाइन स्पेक आपको अप्लाई करके दिखा दिया है। वन वाज इन मिक्सचर, सेकंड वाज इन हीट एक्सचेंजर। तो आप, आई गेस कि आपको डिजाइन स्पेक लगाना आता होगा। आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी डिजाइन स्पेक अप्लाई करोगे और मुझे ये बताओगे कि सर इतना आपका रिएक्टर वॉल्यूम होना चाहिए सो दैट वी कैन अचीव 60% आवर, क्या बोल रहे हो? 60% कन्वर्जन। 60% कन्वर्जन, ठीक है। तो ये चीज आप मुझे बताओगे कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ऑल तो मैं कुछ चीजें चेक कर लेता हूँ कि मेरे पार्ट से तो कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा था कन्वर्जन इतना कम तो नहीं आना चाहिए, फिर भी इतना कम क्यों आ रहा है? लेट्स सी।
व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? कन्वर्जन इतना कम तो नहीं आना चाहिए। कन्वर्जन इतना कम क्यों आ रहा है? कन्वर्जन में कोई कुछ गलती तो नहीं हो रही है? सी द सेटअप, दिस ये टेम्परेचर वगैरह सब कुछ ठीक है, रिएक्शन वगैरह लिया हुआ है। लेट्स लुक एट द काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये सेल्सियस किया हुआ है, अच्छा ठीक है, इसे केल्विन कर दो। लेट्स रन इट, लेट्स सी if there is any change or not. I think it will affect the result, or results are available, so we go to string summary and we can see that yeah, वो टेम्परेचर कंसिडरेशन के कारण गलती हो रही थी, ठीक है, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन जो है वो ऑलमोस्ट 63% है, देख पा रहे हो? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, वो आई थिंक वहाँ पे वो थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इट्स माय मिस्टेक, इट शुड बी केल्विन। क्योंकि वही मैं कह रहा था, क्योंकि 3000 लीटर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ये काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है, बट यहाँ पे कन्वर्जन नहीं दिख रहा था। तो ये देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये फंडामेंटली आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है, ये मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, ये आपको कोई भी किताब नहीं सिखा पाएगी, ये आपको विजुअलाइजेशन सिखा पाएगा। समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पे कैसे देख के स्ट्रक हो रहा था कि भाई क्यों मुझे इतना कम कन्वर्जन मिल रहा है, क्योंकि मैं देखने के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, समहाउ ये नहीं होना चाहिए, ये और अच्छा खासा कन्वर्जन होना चाहिए था, ठीक है, बट तो वहां पे वो गलती थी, इसलिए वो ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो वहां पे उसे केल्विन करने पे आप देख पा रहे हो कि देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ conversion that we are obtaining, and the conversion that we have with us is 63%, ठीक है, 63% मिल रहा है। बट लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को 2500 कर दे रहा हूँ, 2500 लेट अस से, so I will press next and I will say okay, and I will be getting the results, and I will go to string summary and I will be seeing that कि जो आपका फ्लो रेट है, मोल फ्रैक्शन, वो देखो 64% हो गया, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करने से आपका कन्वर्जन बढ़ रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जन बढ़ रहा है और आपको कन्वर्जन यहाँ पे 60% लाना है, दैट मींस यू हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है। तो आप उस तरीके से एक डिजाइन स्पेक अप्लाई करना इसके ऊपर, और डिजाइन स्पेक अप्लाई करके आप इसका मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम बताना कि सर किस इतने वॉल्यूम पे अगर आपने सीएसटीआर को आपने परफॉर्म किया तो आपका 60% कन्वर्जन आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एग्जैक्टली 300 मिलियन पाउंड्स ऑफ इथिलीन अ ईयर प्रोड्यूस करना है, देन व्हाट शुड बी योर फीड फ्लो रेट? आपका पर ईयर इथेन, आपका जो इथेन है उसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट इन द एंड 300 मिलियन पाउंड ऑफ इथिलीन अ ईयर, ठीक है। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, और आप लोग अभी यहीं तक डील करोगे, ठीक है, आप लोग अभी यहीं तक डील करोगे। लेटर ऑन कल क्या कर रहे हो? कल फ्री हो तुम लोग? यस सर, फ्री है। अच्छा, मुझे अभी फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आई एम लिविंग, मतलब आई एम क्विटिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके सर।